آپ کی درسی کتاب نرگس سے صفحہ نمبر 64 ہے، جس پر موضوع ہے آپ کا خود اعتمادی اور نظم ہے پہاڑ اور گلہری۔ اس کے شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ نظم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو واضح کرتی ہوں کہ اس نظم میں دو کردار ہیں، پہاڑ ہے اور گلہری ہے۔ پہاڑ اور گلہری جو ہے، پہاڑ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اور گلہری کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، جبکہ گلہری جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کوئی بڑی چیز ہے یا چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا، کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو بھی میں مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ نے وہ اپنی بک کے اوپر، اپنی کتاب کے اوپر انڈر لائن کر کے اس لفظ کو لکھتے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس نظم کی کچھ وضاحت اشعار کی کروں گی، وہ آپ نے سننی ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مر، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل و یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ شاعر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پہاڑ اپنے آپ کو بڑا، اپنی بلندی پر بڑا ناز کرتا ہے، اور وہ گلہری سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر شرم ہے تو تم پانی میں جا کے ڈوب مرو۔ یعنی پانی میں جا کے ڈوب مرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم تو بے مقصد سی چیز ہو، تمہیں رہنے کی کیا ضرورت ہے، تم مر جاؤ، ذرا سی چیز ہو، اور تمہیں اپنے اوپر کتنا گھمنڈ ہے، کتنا غرور ہے، اور تم باتیں تو بڑی ایسے کرتی ہو جیسے تمہیں بڑی عقل ہے، تمہیں بڑا شعور ہے، لیکن نہ تو تم میں عقل ہے اور نہ سمجھ ہے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ گلہری کو بہت باتیں کر رہا ہے۔ خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ اب پہاڑ جو ہے وہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، پہلے اس کی برائی بیان کرتا ہے گلہری کی، اور پھر اپنی جو ہے وہ تعریف بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے خدا کی شان نہ چیز، نہ چیز ہم کہتے ہیں جس چیز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نہ چیز جو ہے وہ چیز بن گئی ہے، یعنی کہ اہم ہو رہی ہے، اور جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بیٹھے، یعنی کہ بندے عقل والے ہیں اور ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بڑی ان میں تمیز ہے۔ کہتے ہیں کہ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، بساط کہتے ہیں اوقات کو، ٹھیک ہے، حیثیت کو۔ کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے میری شان کے آگے نا، تو زمین ہے پست میری آن بان کی، کہ میرے سامنے تو زمین بھی ہے وہ بہت نیچے ہے، بہت گہری ہے، میں تو بہت اونچا ہوں۔ اب جو پہاڑ ہے وہ یہاں اپنی تعریفیں بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی تم تو بالکل چھوٹی سی ہو، اور میں تو، میرے سامنے تو زمین بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی میرے سامنے نیچے ہے، میں تو، میری تو آن بان ہی بہت ہے، میری تو، یعنی کہ میری تو بڑی عزت ہے، میں تو بڑا اونچا ہوں، میری تو بہت عزت ہے۔ آن بان کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے، آن بان یعنی شان شوکت، عزت، اونچائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ اب پہاڑ جو ہے، پہلے دو اشعار میں پہاڑ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اب یہ 4 اشعار میں نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے 2 اشعار میں پہاڑ اپنی بات کر رہا ہے، اس کے بعد گلہری اس کو جواب دے گی۔ کہتا ہے کہ جو بات تم میں ہے وہ، جو بات مجھ میں ہے وہ تم میں کہاں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پر بڑا غرور ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا اونچا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا، اور تمہاری تو قسمت ہی نہیں ہے، تمہاری قسمت میں یہ اونچائی کیسی، تم تو بہت چھوٹی سی ہو، اور کسی پہاڑ کے آگے کسی چھوٹے سے جانور کی ویسے بھی کیا اوقات ہوتی ہے، میں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہوں، اور تم تو ایک کمزور سی جانور ہو۔ یہ باتیں سن کر نا گلہری کو غصہ آ گیا۔ اب اگلے 2 اشعار میں گلہری کہتی ہے کہ اے پہاڑ ذرا لفظوں کو سوچ سمجھ کر بولو، ایسے فضول کی باتیں مت کرو، اور اس طرح کے وہم جو ہے نا وہ اپنے دل سے نکال دو۔ اب اگلے اشعار پہ جو ہے وہ گلہری بات کر رہی ہے، جو میں بڑی نہیں
तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। अब गुलहरी कहती है इन इशार में, क्या कहती है, फिर क्या हुआ, अगर तुम बहुत बड़े हो तो मैं छोटी हूँ, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो ना। नहीं, मुझे भी अल्लाह ताला ने मेरे मुताबिक बनाया, तुम्हें तुम्हारे मुताबिक बनाया है। तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, तो तुम भी तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते ना। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती, तो तुम इतने ऊंचे हो, तुम भी तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। और गुलहरी अब अल्लाह ताला की हिकमत को बयान करती है, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करती है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो बेमकसद नहीं है। किसी को अल्लाह ने छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, और किसी को शान दी, किसी को, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जिसको जैसा बनाना चाहे। ये उसकी मसलहत है, ये उसके फैसले हैं कि वो किसको बड़ा बनाता है और किसको छोटा बनाता है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें। अब वो ना उसको उसको भी एहसास दिलाना चाह रही है, जैसे वो उसको बातें कर रहा था ना कि गुलहरी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा जानवर है। अब वो उसको कह रही है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे छोटा बनाया तो फिर क्या हुआ, मैं तो दरख्त पे ऐसे भाग के चढ़ती हूँ, क्या तुम चढ़ सकते हो? और तुम्हारी तो जरा सी ताकत भी नहीं है कि तुम अपनी जगह से हिल भी सको। तो मुझे तो अगर सिर्फ तुम बड़े ही बड़े हो, और क्या खूबी है तुम में, तुम तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकते। और मैं तो यहाँ से वहां जाती हूँ, दरख्तों पे चढ़ती हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं करती हूँ। और अल्लाह ने मुझे उछलना कूदना भी सिखा दिया है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ के दिखा मुझको, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अब जो है गुलहरी वो कहती है कि कोई तुम में खूबी है तो वो बताओ ना, एक ही जगह पर रहते हो, ना तुम हिल सकते हो, ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, और मुझे देखो, मैं खाती पीती हूँ, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाती हूँ। अब जरा ये छालिया है, छालिया कहते हैं सुपारी जो आप लोग अक्सर खाते हैं रैपिंग में, बाजार से मिलती है, पान के अंदर भी वो डलती है छालिया, ठीक है। वो कहती है, और छालिया का ना एक पूरे एक नट की तरह होती है, जैसे एक वो अखरोट की तरह होती है, ठीक है। वो देखने में अखरोट नहीं होती, देखने में वैसी होती है, उसके पीसेस किए जाते हैं, तो वो काफी सख्त होती है। गुलहरी कहती है कि देखो मैं इतनी सख्त जो छालिया है उसके उसको टुकड़े टुकड़े कर लेती हूँ, उसको खा लेती हूँ। तो तुम पहाड़ हो, बड़े ही हो ना, तो उसको तोड़ के दिखाओ ना। तो अल्लाह ताला, और अब वो फिर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रही है और अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रही है कि अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया में, इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। कोई शय भी इस दुनिया में बेकार नहीं है। हर चीज़ जो है वो अपने मकसद और अपने काम के तहत चल रही है। अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को कोई ना कोई सिफ़त अता की है। कोई भी दुनिया में कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो नकारा नहीं है। तो ये थी आपकी वजाहत इस नज़म की, और मुश्किल अल्फाज के मानी भी मैंने बता दिए हैं। अब आपने इसको पढ़ाई को, मतलब घर में आपने बुक पर पढ़ाई अच्छे से करनी है, लफ्ज़ों के मतलब जो है वो समझने हैं, और तशरीह आपने लाजमी करनी है, ठीक है। पहले 4 अशार की तशरीह और नेक्स्ट 4 की, फिर इस तरह से अगले अगले 4 की आपने बंद की सूरत में इसकी तशरीह करनी है, ठीक है। और ख़ुद कीजिएगा और समझ कर कीजिएगा। अभी हमने नज़म पढ़ी बहार और गुलहरी। अब इसके अल्फाज मायनी हैं आपके सफ़ा नंबर 65 पर, और इसके मुश्किल सवालात हैं जो हमने हल करने हैं। सबसे पहला है अल्फाज के मानी लिखिए, याद रखिए एक ही मानी रखने वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। यानी एक ही तरह के मीनिंग जो होते हैं, मतलब जो होते हैं, वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे मानी वाले अल्फाज। अब शऊर का मतलब होता है अकल। आप अपनी बुक के ऊपर ही बेशक लिख लीजिए, आगे जगह बनी हुई है, आप इसके मानी जो हैं वो अपनी किताब पर लिख लीजिए। सफ़ा नंबर है आपका 65। मीनिंग मानी लिखवाने लगी मैं, शऊर अकल, बातमीज़ तमीज़दार या सलीकामंद, बसात कहते हैं हसीयत को,
या औकात को। बसात कहते हैं हैसियत को या औकात को। कच्ची बातें यानी फजूल बातें, ऐसी बातें जिनका कोई माने नहीं होता। निकम्मी, बेकार या फजूल। नसीब कहते हैं किस्मत को। पस्त कहते हैं गहरी को। हिकमत कहते हैं दानाई को, अक्लमंदी को। निरी कहते हैं सिर्फ, सिर्फ, महज या सिर्फ। हुनर कहते हैं कमाल या खूबी को। दुरुस्त। अब अगला सवाल है आपका कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। ठीक है। पहाड़ गुलहरी से कैसे बात कर रहा था? बदतमीजी से या एहतराम से? कैसे बात कर रहा था, ये आपने यहाँ पर टिक करना है। पहाड़ अपने आप को गुलहरी से बेहतर क्यों समझ रहा था? नीचे दो आपको दी गई हैं आपकी चॉइस। अपनी किसी काबिलियत की वजह से, सिर्फ अपने बड़े होने की वजह से। पहाड़ गुलहरी को कैसा समझ रहा था? हकीर, छोटी सी चीज या इज्जत के काबिल? अब इतनी नज़म की वजाहत के बाद आप पर ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि आप इसको हल कर सकेंगे। गुलहरी ने कैसी बातें की? अक्लमंदी की या बेवकूफ़ी की? पहाड़ ने कैसी बातें की? अक्लमंदी की या बेवकूफ़ी की? गुलहरी ने पहाड़ को क्या समझाया? कुदरत ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई या बहुत छोटे जानवर बेकार होते हैं? गुलहरी ने छोटे होने के बावजूद पहाड़ से क्यों बात की? वो बेवकूफ़ थी या पुरएतमाद थी? अब आखिरी सवाल है इस सफ़े का, सफ़ा नंबर 65 का आखिरी सवाल है। इस नज़म की शायर का नाम क्या है? इनकी किसी और नज़म का नाम भी लिखिए। इस नज़म की शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। अब आपने जो है वो किसी और नज़म का भी, इनकी अल्लामा इकबाल की किसी और नज़म का नाम भी लिखना है। इस नज़म के मश्की सवाल का सफ़ा नंबर 66 है। ये हमने इसको हल करना है। इस नज़म में कितने किरदार हैं, इनके नाम बताने आपने। आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि पूरी नज़म में कितने किरदार हैं। अब ये किरदार हकीकी हैं या फर्जी हैं। ठीक है। नीचे लिखे गए अल्फाज में से कौन से अल्फाज पहाड़ के किरदार के लिए मुनासिब हैं, इन पर दायरा लगाएं। अक्लमंद, रहमदिल, खुद पसंद, मगरूर, बासमझ, बदमिजाज या बेशऊर। फिर अगला उन्होंने आपको पूछा है, पहले उन्होंने पहाड़ के बारे में पूछा है, अब आपसे वो गुलहरी के बारे में पूछ रहे हैं। बातमीज है वो, बातमीज यानी तमीज वाली, मगरूर है, बदमिजाज है, पुरएतमाद है, हुनरमंद है या बासमझ है। 7वां सवाल है आपका, इस नज़्म का मरकजी ख्याल जिन अशार में है वो अशार अपनी कॉपी में लिखिए। इसका जो है वो मरकजी ख्याल आपको आखिरी अशार में मिलेगा। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है तो आपको उसका मरकजी ख्याल मिल जाएगा। आखिरी नज़म की आखिरी अशार में इसका मरकजी ख्याल मौजूद है। सवाल नंबर है आपका 8। इस नज़म का मरकजी ख्याल वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वो अशार, पहले तो आपने अशार लिखने हैं जो कि आखिरी अशार में से है, और फिर उसके बाद आपने उसका मरकजी ख्याल लिखना है, और उन्हीं अशार से आपको उसका मरकजी ख्याल भी मिल जाएगा। बा की जगह बे या बद लगाकर अल्फाज की जिद बनाएं। जिद मतलब अल्फाज मुतजाद बनाएं। अब जैसे बाअकल अक्लमंद को कहते हैं, और बेअकल जिसको अकल नहीं होती। बातमीज यानी जिसको तमीज होती है, तो जिसको तमीज नहीं होती आप उसको क्या कहते हो? बदतमीज। ठीक है। बाअदब जिसको अदब होता है, जिसको लिहाज होता है, और बेअदब कहते हैं जिसको लिहाज नहीं होता। बाशऊर अक्लमंद, और बेशऊर जिसको अकल नहीं होती। बाअसर जिस पर असर होता है, और बेअसर जिस पर कोई असर नहीं होता। हुनर कहते हैं खूबी को, आपकी अच्छाई को, खासियत को, और बेहुनर कहते हैं जिसके अंदर कोई भी खूबी मौजूद नहीं होती। तो आपकी नज़म पहाड़ और गुलहरी की नज़म की जो है मश्की सवालात मुकम्मल हो गए। अब आपने अपनी